Okay, so let us proceed further for properties of fluid, mechanical properties of fluid, जहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 94 एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स किया हुआ था. क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर दैट. सो क्वेश्चन नंबर 95. Yeah. It says 94 तो हमने सॉल्व कर लिया था. I think so. Question number 95. Let us copy this. The sap in tree rises in a system of capillaries of radius this and this. Radius. The surface tension of the sap is this much. I think it's very simple. Radius is given here. R is equal to 2.5 10 raised to minus कितना दिया है minus 5 meter. The surface tension of the sap is T is equal to 7.28 into 10 raised to minus 2 Newton per meter. And angle of contact theta is equal to 0 degree. The maximum height to which the sap can rise in a tree through the capillary action is. Density of sap is also given here. Okay. Now it's very simple. The formula is H is equal to. Can you anybody tell me the formula? Correct. 2t cos theta upon r rho g. It's a formula substitution answer type. 2t cos theta radius is given to us, rho is given to us, g is given to you. So homework? Yeah, you want me to perform the approximation method? कैसे करना है? चलिए बता देता हूँ. 2 times t is 7.28 into 10 raised to minus 2. Cos theta is cos 0 is 1 divided by r is the radius 2.5 into 10 raised to minus 5 rho, yeah, 10 raised to 3, and g is 9.8. G is 9.8. Well, for the process of simplification मैं इसे 10 ले लूंगा. तो बचेगा क्या? देखिए ये मल्टीप्लिकेशन करना है, 25 से डिवाइड करना है. So this will be like 8 to the 16 1 14.56 आएगा, बट एक डेसिमल शिफ्ट करना है तो आई राइट इट एज 145.6 अपॉन यहाँ का एक डेसिमल शिफ्ट करके 25 हो जाएगा. बाकी के 10 का पावर्स यू जस्ट टेक केयर ऑफ इट. ये -2 है, 3, दिस इज -5 एंड 3 -2 -2 प्लस 1 -1 -1 ऊपर जाके +1 बनेगा. इज दैट फाइन? So basically this is 25 ones are 25 fives are 125 point 20 बचा 206 8s are correct, and I think that's enough. ये आएगा 5.8 into 10 raised to minus 1 meter or 0.58 meter. And what is the exact answer here? 0.59. B is the answer. Is this clear to you all? Any doubts about that? This is very simple actually, but आपको ये सारे फॉर्मूले या कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं विदाउट कैलकुलेटर. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96. देखिए, mercury has an angle of contact equal to 140 degree with soda lime glass. Okay. A narrow tube of radius 1 millimeter made up of glass. This glass is dipped in the trough containing mercury. The surface tension of the mercury at the temperature of the experiment is.
T is equal to 0.465 Newton per meter. This is the surface tension of the mercury. The distance by which the mercury deep down in the tube relative to the mercury surface outside is. Density of the mercury is given to be rho is equal to 13.6 into 10 raised to 10 raised to 3 kg per meter cube. Okay, this is given to us. Radius is 1 into 10 raised to minus 3 meter. फॉर्मूला बताइए. करेक्ट. H is equal to 2t cos theta upon r rho g. आपका लर्न हो गया. थैंक यू. वेरी गुड. r rho g आपने बता दिया इसलिए मैं लिख सका. तो लेट मी सब्स्टिट्यूट हियर नाउ. H is equal to 2 times t 4.65 into 10 raised to minus 1 cos theta, that is cos of 90 plus कितना है ये 140 cos of 90 यहाँ पर आपको देना पड़ेगा उनको. लेट्स टेक दिस cos of 40 cos 50 cos of 50 degree is 0.77. This will be given to you. Now cos of 90 plus 50, cos of 90 plus 50, sorry ये cos 40 होगा. 40, this is cos 40. Cos 40 is 0.77. I can write this as cos of 180 minus 40. बराबर है ना. This number is 140 ना. This number is 140. 140 is 180 minus 40 and cos of 180 minus theta minus cos theta. So this is minus 0.77. Is this clear to all? Is this clear to all? Divided by r 10 raised to minus 3 rho 13.6 into 10 raised to 3 g is 9.8. I'll take this as 10. Approximations. Therefore h is equal to क्या आएगा 2 into 4.65. ये माइनस आएगा इसलिए वहां पर मर्क्यूरी के केस में वो डिप्रेस हो जाता है. डू यू नो in case of water the level rises, in case of mercury the level goes down. Have we talked about this earlier? I said have we talked about this earlier? We have. ये जो होता है मर्क्यूरी, देखिए यहाँ पर मैंने बात करी थी कैपिलरी एक्शन. इन केस ऑफ वाटर द वाटर विल राइज हियर, whereas in case of mercury capillary level in mercury will drop down. ये ऐसे we have talked about. mercury का लेवल नीचे चला जाता है. उसका रीजन है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट जो आता है, इट इज एन ऑब्टयूज एंगल जिसकी वजह से कॉस रे कंपोनेंट माइनस आ जाता है. इज दैट अंडरस्टूड? आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट. आप लोगों ने शायद उसको रिवाइज नहीं किया है. किया है रिवाइज? लिख लिया है. तो दिस इज माइनस 4.65 10 raised to minus 1 into 0.77 डिवाइडेड बाय, देखिए ये है 13.6 इंटू 10 का पावर, देखिए यहाँ पे प्लस 3 एंड माइनस 3 गेट्स कैंसिल एंड दिस इज 10 raised to 1. अब देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा मुझे. आई थिंक I'll do this. I'll take this as 0.8 and this will become then 1.6. ये जो प्रोडक्ट है वो 1.6 बनेगा. 1.6 से इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा? $74.40 अपॉन 13.6 इंटू 10 का पावर पूरा कैंसिल हो जाएगा. 10 raised to minus 2 हो जाएगा ऊपर जाके. हाँ 13.74.4 एंड दिस. यार इसको डिवाइड कैसे करेंगे हम?
2 3 जा 6 7 जा 2 जा 6.8 और एक बार 2 से 2 1 जा 8 जा 6 जा 2 3 जा 2 4 जा और एक बार 2 8 जा 6 2 9 जा 2 3 जा and 2 1 जा 2 7 जा so 9.30 17 17 का टेबल अगर आता होगा तो उससे आएगा 17 1 जा 85 8 12 बचा 5.47 this is minus 5.47 into 10 raised to minus 2 meter that is minus 5.47 centimeter या तो या something like this कितना आ रहा है आंसर यहाँ पे 10 raised to minus 2 एक सेकंड यहाँ पर 7 हाँ यहाँ पर 2 डिजिट और ये 3 डिजिट तो दिस शुड हैव बीन 7.444 तो यहाँ पर 74 ये -3 होगा दिस इज -3 so actually this has to be minus 5.47 millimeter yeah that's the answer here check did you all understand that A is the answer here ये माइनस क्यों है क्योंकि डिप्रेशन है वहां पे इट गोज डाउन इज दैट अंडरस्टूड इज दैट क्लियर so that is about the calculation part of it any doubts about that आगे बढ़ते हैं let's go for the next question and that's a star question number 97 it's a star problem it's a star problem two capillaries of same length and same radii two capillaries of the same length and same radii in the ratio 1:2 same length and radii in the ratio 1:2 so r1 upon r2 is the ratio 1:2 are connected in series okay उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है सीरीज में मतलब क्या होगा रे व्हाट यू मीन बाय सीरीज व्हाट यू मीन बाय सीरीज मतलब एक कैपिलरी ऐसा कनेक्ट किया है और दूसरा जो है वो इस तरह कनेक्ट किया गया है ठीक है दोनों का लेंथ सेम है L1 एंड L2 L1 is equal to L2 actually a liquid flows through them in the streamline condition okay the liquid flows through it in the streamline condition if the pressure across the two extreme ends of the combination is 1 meter of water यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर the pressure across them is 1 meter okay the pressure difference across the first capillary is तो यहाँ का जो प्रेशर डिफरेंस है यहाँ से यहाँ का प्रेशर जो है वो पूछा है सो लेट मी से दैट both the tubes are connected in series and the pressure difference in the combination is यहाँ पर I'll say here यहाँ का प्रेशर डिफरेंस P1 है और यहाँ का प्रेशर डिफरेंस P2 है से फॉर एग्जांपल और अगर वो कनेक्टेड इन सीरीज है सिंस connected in series since they are connected in series therefore जो भी कुछ टोटल प्रेशर डिफरेंस है total pressure difference I'll call this as P is equal to P1 plus P2
and this is given to be 10 meter of water, sorry, 1 meter of water. This is given to be 1 meter of water. Mind well, this is a star problem. 1 meter of water. That means it is the difference, the pressure difference is equal to the pressure exerted by 1 meter of water column. 1 meter of water का मतलब होता है h rho g में h of water is 1 meter, ऐसा उसका मतलब है. Is this clear to all? ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला हमें जो यूज करना है, द वॉल्यूम फ्लो रेट. द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम फ्लो रेट, भाई कौन सा फॉर्मूला है ये? दिस फॉर्मूला इज गिवन हियर. वॉल्यूम फ्लो रेट. पाई आर क्यू. Pauchy's formula for the volume of the liquid. Can you see this? This is the formula for volume flow rate. नया formula है ये, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. This is the formula for volume flow rate. This is the formula for volume flow rate. ठीक है? Now what is this volume flow rate? Pauchy's formula for volume of a liquid flowing out per second in a narrow pipe. पाइप के अंदर जो लिक्विड फ्लो होता है उसका वॉल्यूम फ्लो रेट यहाँ पर बताया गया है. इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. चलिए लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द. V is the volume of the liquid flowing. ये V is not the velocity, please remember. ये क्या है? Volume of the liquid flowing. And this is time. So this much liters per minute हम बोलते हैं ना, liters per minute. पानी नल को आ रहा है, कितना लीटर एक मिनट में आ रहा है पानी. It's as simple as that. Understood? Pi. P is the pressure difference. ये क्या है? P क्या है? Pressure difference. जो कि यहाँ पर बताया गया है. Pressure difference. R is the radius of the pipe. R is the radius of the pipe. Pipe radius. Eta is the viscosity of the liquid flowing. Viscosity of the liquid which is flowing. And L is length of the pipe. L is length of the pipe. Is this clear to you all? Length of pipe. Any doubts about that? L is the length of the pipe. समझ में आया सबको? Isn't it? अब ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, if I'll apply this formula here, if I'll apply this formula here, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देखिए यहाँ का रेडियस R1 है और यहाँ का रेडियस R2 है. तो यहाँ का जो प्रेशर डिफरेंस और ये सेम पानी यहाँ से इधर फ्लो हो रहा है. तो वाटर फ्लोइंग इज सेम. तो यहाँ पर पानी अगर 5 लीटर एक मिनट में आ रहा है तो यहाँ से बाहर जाने वाला पानी भी वही रहेगा. So in this case I will say the volume flow rate is equal to constant here. Why? Because it's a streamlined flow. It's a streamlined condition. The liquid, यहाँ से जितना लिक्विड अंदर आएगा उतना ही लिक्विड यहाँ से बाहर जाएगा. Yes or no? तो सडनली अगर उसका एरिया बढ़ता है तो वहां पर उसका प्रेशर ड्रॉप होना चाहिए. बर्नौलीज कंडीशन क्या बोलता है? व्हाट इज बर्नौलीज इक्वेशन? आप बताइए मुझे. बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है बताइए. Here we have seen the Bernoulli's equation. I think the second और थर्ड कहाँ देखा था बर्नौलीज इक्वेशन? ये रहा बर्नौलीज इक्वेशन. बराबर है ना? दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन इन वेरियस फॉर्म्स. करेक्ट? pressure volume energy, potential energy, kinetic energy. This is called as pressure head, this is called as potential head, this is called as velocity head. Are you understanding this? Isn't it?
तो यहाँ पे पानी जो फ्लो हो रहा है वो सेम लेवल पे फ्लो हो रहा है, तो उसका क्या सेम रहेगा इन दैट केस? व्हाट बी सेम हियर? अगर वो सेम लेवल पे है तो उसका जो पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल हेड H1 इज इक्वल टू H2 होगा, यस और नो, इजंट इट? आई जस्ट टेक दिस, ये वाला फॉर्मूला अगर मैं वहां पे कॉपी कर लेता हूँ, दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन दैट आई हैव इन हियर। देखिए यहाँ पे दिस इज बर्नौलीज इक्वेशन, तो इसमें दे आर एट द सेम लेवल, मतलब H सेम ही होगा, H1 एंड H2 विल बी सेम, इट विल गेट कैंसल। तो अब यहां से जब इधर जा रहा है वो, यहां से जब इधर जा रहा है तो उसका प्रेशर, उसका वेलोसिटी और प्रेशर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर? उसका प्रेशर ड्रॉप होगा ना वहां पे कि नहीं? सडनली उसको ज्यादा एरिया मिल रहा है। आप सिंपल एक चीज बताइए, आप जब पाइप होता है, पाइप को जब आप वहां पे यू पुट समथिंग देयर, तो क्या उसका वेलोसिटी वहां पे बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है वहां पे कि नहीं बढ़ता है? आपने पाइप, पानी का पाइप होता है, उसको अगर आप वहां पे इफ यू पुट द फिंगर एट द टिप, व्हाट विल हैपन? उसका प्रेशर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? मतलब यू आर ट्राइंग टू कॉन्स्ट्रिक्ट द एरिया फ्लो विच इट फ्लोज, तो अगर एरिया कम करोगे आप तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, और यहाँ पे एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर ड्रॉप होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? isn't it? Let's consider it here, let's understand it over here. तो यहाँ पे सेम क्वांटिटी अगर फ्लो हो रहा है, चलिए, तो इफ आई से हियर Q इज इक्वल टू, इट विल बी पाई, यहाँ का प्रेशर ड्रॉप है P1, ओके, और यहाँ का रेडियस है R1, सो दिस विल बिकम R1 रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 8 ईटा, और यहाँ का लेंथ है L1, आई से द लेंथ इज L1 ओवर हियर, लेकिन L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L बोलेंगे क्योंकि उन्होंने बोला है दे हैव गॉट द सेम लेंथ, सो लेट मी कॉल दिस एज L, and that is also equal to the same amount of liquid is flowing here, so this is pi P2 R2 raised to 4 upon 8 eta L. Any doubts about this? Is this clear to all? क्या ये सबको समझ में आ गया मैंने क्या एक्सप्लेन किया यहाँ पे? Did you all understand that? Okay. अभी तक हमने इसको सॉल्व नहीं किया है। Now if I take the ratio of these two, इन दोनों का रेशियो अगर मैं लिखूं, if I take this further, so this will give me, इसमें से P1 अपॉन P2 कितना आएगा? व्हाट इज P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू, देखिए 8 ईटा L ये सब कैंसिल हो जाएगा, प्लीज हैव अ लुक एट दिस, लुक एट दिस, 8 ईटा L ये सब कैंसिल होगा, पाई भी कैंसिल होगा, एंड व्हाट इज P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू, P1 upon P2 is equal to R2 upon R1 bracket raised to 4. But as we all know that R1 upon R2 is 1 by 2. So R2 upon R1 is, R2 upon R1 is 2 and 2 raised to 4 is 16. That means P1 is equal to 16 times P2. Is this clear to all? P1 यहाँ पर बड़ा होगा 16 times P2. तो P2 ड्रॉप है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वहां पे. Is this clear? Any doubts about that? ठीक है, and we know that total pressure P is equal to P1 plus P2, that is equal to 1 meter of water. So let me just come to this point here. Therefore from this what I say here is P is equal to P1 plus P2, but P1 is 16 times P2, so 16 plus 1 17 times P2 is the total drop, and P1 is equal to 16 upon 17. अगर मैं यहाँ पर P1 के जगह P2 के जगह पर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो दिस बिकम P1 plus P1 upon 16, that is 16 plus 1 17 upon 16 times P1. If I write P in terms of P2 तो ये आ गया, and if I write P in terms of P1 तो ये आ गया. Any doubts about that? Is this clear to all? Is this okay? अब एक चीज आप मुझे बताइए, बट दिस P is actually equal to 1 meter of water, 1 meter of water, बराबर है ना? So from this I conclude therefore
P1 is equal to 16/17 मीटर ऑफ वाटर. यस, यहाँ से मुझे मिल गया 16/17 times meters of water. Is this clear to all? Isn't it? And that is equal to कितना आएगा ये, और शायद उन्होंने वही पूछा है, द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट कैपिलरी. उन्होंने सिर्फ ये वाला प्रेशर डिफरेंस वही मतलब P1 पूछा है. दैट इज इक्वल टू 16/17 टाइम्स मतलब 0.94 मीटर ऑफ वाटर. दिस इज 0.94 मीटर ऑफ वाटर. दैट इज D is the answer. That's what they are asking here. Is this clear to you all? Star problem है. This is a star. Any doubts about that? Is this clear to all? Okay. Liter of water. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 98. इसमें ये वाला एक फॉर्मूला, नया फॉर्मूला था. This was a new formula and that's why we have marked it. So it's a new formula for you all. Let's go for the next question. Question number 98. 98, 99, 100. मुझे लगता है ये वाला आप सॉल्व कर सकते हो. I just discuss this here. Surface tension of water is given T. Then the capillary rise in the tube of diameter R is 0.5 millimeter. Diameter is 1 millimeter. Take theta is equal to 0. कैसे करेंगे? H is equal to 2T cos theta upon R rho G. देखिए यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, बट दिस रेडियस टू बी कन्वर्टेड इनटू मीटर, सो दिस विल बिकम 5 × 10⁻⁴ मीटर. So H is equal to 2 times surface tension is 6 × 10⁻², cos 0 is 1 divided by R is 5 × 10⁻⁴. Rho for water, rho for water आप बताइए. 10⁻³ correct. G, I'll roughly take this as 10, 9.8, 10, and that will be the answer. So 6 2s are 12, 12/5 into 10 के पावर्स देखते हैं. This is -2. अब देखिए this is 4 and -4 gets cancelled. So this is 5 2s are 10, 5 4s are 20 into 10⁻² meter, or it is 2.4 centimeter. And that's the answer. Quite easy. Is this clear to you all? B. For substitution answers very simple. समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. I'll give this as a homework. ये आप लोग कर लीजिएगा. I'll leave it to you. I'll go for question number 10. Sorry, 100. Question number 100. आप लोगों को सेम एडिशन मिला है ना रे? मतलब आपका सीक्वेंस और ये सीक्वेंस सही है ना? डिफरेंट है, लिटिल बिट डिफरेंट, और मच ओके. तो इन द फर्दर तुम लोगों का सेम है क्या रे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किरण योर इज सेम ना? किरण सर सेम है. हाँ हाँ तुम्हारा सेम है ना किरण? ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. यस. हाँ, तो कैपिलरी ट्यूब 100, क्वेश्चन नंबर 100. हाँ, क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं. बताइए क्या दिया है यहाँ पे? A capillary tube of radius r immersed in water and rises it to height h. The mass of the water in the capillary tube, mass of the water is given here 5 gram.
Another capillary tube of radius 2r, इसका रेडियस r है और इसका रेडियस 2r है, is immersed. The mass of the water in that the mass of water that will rise in this tube is, तो यहाँ पर मास m1 दिया है, यहाँ का मास m2 हमें पूछा गया है. क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो ये फॉर्मूला है h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो g, ठीक है ना, r रो g व्हाटएवर. इसमें अगर मैं h और r को मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मुझे मिलेगा 2t cos थीटा अपॉन रो g. एंड फॉर द गिवन कंडीशन, मतलब जब तक हम अगर किसी की कैपिलरी ट्यूब, मतलब मेरे पास ग्लास एंड वाटर, कोई भी सॉलिड लिक्विड कॉम्बिनेशन है, उसकी जब तक बात करेंगे तो उसमें सरफेस टेंशन फिक्स होता है, थीटा कांस्टेंट होता है, रो उस लिक्विड का कांस्टेंट होता है, जी कांस्टेंट होता है. सो इन शॉर्ट HR is equal to constant. That's what we say. We say that HR is equal to constant. Are you understanding what I'm saying there? Isn't it? HR is equal to constant. अब मुझे मास ऑफ द वाटर अगर चाहिए, मास ऑफ द वाटर इन द फर्स्ट ट्यूब, H is equal to 2t cos theta. अगर मुझे इसको इन टर्म्स ऑफ मास एक्सप्रेस करना है तो आई कैन से दैट मास इंस्टेड इन डेंसिटी के फॉर्मेट में मैं लिख सकता हूँ मास वहां पे. सो इफ आई टेक दिस डेंसिटी हियर, क्या मिल जाएगा मुझे? मास m इज इक्वल टू जो लिक्विड कैपिलरी के अंदर राइज होता है, सपोज इट राइजेस टू हाइट h, isn't it? So I can say mass is equal to density into volume. वॉल्यूम क्या होगा? पाई r स्क्वायर इंटू h, ये उसका वॉल्यूम होगा, बराबर है. और h के लिए मैं ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, आई सब्स्टिट्यूट दिस फॉर h, ठीक है. तो ये क्या बन जाएगा? मास m इज इक्वल टू रो पाई r स्क्वायर इंटू 2t cos थीटा अपॉन r रो g. इसमें क्या क्या कैंसिल होगा देखिए, r gets cancelled, rho gets cancelled. So what is this mass is given by? Mass is given by 2t cos theta upon r rho g. This will be 2 pi t cos theta into r divided by g. This is what it is given by, isn't it? अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये सब चीजें कांस्टेंट है and mass is directly proportional to the radius. Mass is directly proportional to the radius. तो अगर इसका मास 5 ग्राम है फॉर रेडियस r, तो इसका मास फॉर रेडियस 2r कितना होगा? फैंटास्टिक, वेरी गुड. इज दिस ओके? सो द आंसर हियर वुड बी 10 ग्राम. सो द आंसर इज सी. मुझे लगता है ये बाकी का जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. Is this clear to all? Is this clear to all? Any doubts about that? Okay. अगला क्वेश्चन. सॉरी, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, इसमें से मैं फर्स्ट इज अ स्टार प्रॉब्लम. देखिए गौर से यहाँ पे, फर्स्ट इज अ स्टार प्रॉब्लम, दूसरा हाफ स्टार प्रॉब्लम, तीसरा भी स्टार प्रॉब्लम, चौथा भी स्टार प्रॉब्लम और पांचवा डबल स्टार प्रॉब्लम.
6, 7, 8 आप सॉल्व कर लीजिएगा घर पे, लेकिन ये सारे प्रॉब्लम जो है वो मैं सॉल्व करने वाला हूँ. ग्रेट, लेट्स गेट गोइंग. So I'll start with the first question here. Let's begin with the first question. Thoughts? Actually ये difficult वाले question यही solve करने के लिए, मतलब it's better that we solve these questions. It's important that we solve such questions. So let's begin. यहाँ पे दिया है कैपिलरी का शेप ही चेंज किया है. ग्लास कैपिलरी ट्यूब of the shape of a truncated cone. It is the shape of truncated cone. ठीक है, truncated cone with apex angle alpha, so that its two ends have cross sections of different radii. इसके दो ends का cross section अलग अलग है. The water rises in it to h, to level h, where the radius of its cross section is b. Okay, if the surface tension of the water is s, its density is rho, and its contact angle with the glass is theta, the value of h will be. Okay, well, let me, I'll just get the diagram here first. So this is the diagram. You see क्या दिया है यहाँ पे? Please look at this carefully. Check here please. यहाँ पर ये है capillary and this capillary is in the form of a truncated cone. मतलब ये capillary, ये देखो ऐसा है capillary. This is the capillary. उस capillary के अंदर तो ये यहाँ से ऊपर गया है पानी, यहाँ से ऊपर गया है. It's in the form of a truncated cone. Alpha is the apex angle. तो ये अगर apex angle alpha है तो what will be this angle? ये angle कितना होगा जी? ये जो है this angle is going to be alpha by 2. ये alpha by 2 होगा. I hope this is clear to you all. I hope this is clear. ये वाला angle होगा alpha by 2. बराबर है क्या? Okay. Now let's see. Please be attentive. Please be attentive. हाँ, यहाँ का एंगल अल्फा बाय 2 होगा. ठीक है, ये वाला एंगल अल्फा बाय 2 होगा. मुझे उन्होंने पूछा गया है कि व्हाट इज द एच, यहाँ पर जो एच राइज इन द लिक्विड होगा वो कितना होगा, वो हमें पूछा गया है. नाउ हियर यहाँ का जो रेडियस दिया गया है, द रेडियस ओवर हियर, दिस रेडियस टिल विच इट राइजेस, दिस रेडियस इज गिवन टू बी b. दिस रेडियस इज b. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस b इज एक्चुअली इक्वल टू? कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस b इज एक्चुअली इक्वल टू? देखिए, अगर ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट की अगर बात करें, थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट. एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? इट इज एंगल मेड बाय द एंगल ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड द सॉलिड सरफेस. तो ये है लिक्विड सरफेस, ये उसका टेंजेंट है. देखिए, दिस इज द टेंजेंट. ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस. ये सॉलिड सरफेस है. दिस इज द सॉलिड सरफेस, solid surface, and this is tangent to the liquid surface at the point of contact. So this is angle theta. अगर ये theta है तो ये भी theta ही होगा. Yes or no? This is also theta. Any doubts about that? Any doubts about that? समझ में आ रहा है? अच्छा, one more thing. Yes please. हाँ, और एक चीज यहाँ पर, अब ये थीटा है, ये भी थीटा है. अल्फा बाय 2 इज दिस एंगल. अगर ये अल्फा बाय 2 है तो वर्टिकल के साथ बनने वाला ये एंगल भी अल्फा बाय 2 ही होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? ये एंगल, ये डायग्राम ही, इसका एंगल ही क्रिटिकल है यहाँ पे. दिस इज आल्सो अल्फा बाय 2. तो ये अल्फा बाय 2 है और ये थीटा है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? अब मैं आपको दो
चीजें यहाँ पर दो दो साइड्स कंसिडर करने वाला हूँ। गौर से देखिए दैट ये वर्टिकल है, दिस इज अ वर्टिकल, और वर्टिकल का परपेंडिकुलर मैंने हॉरिजॉन्टल यहाँ पे दिखा दिया है। सही है, करेक्ट है। दूसरा है ये दिस टेंजेंट, ये टेंजेंट है दूसरा, एंड टेंजेंट का परपेंडिकुलर ये है जिसे हम नॉर्मल बोलेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रहा है? देयर इज वन, प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन। एंगल बिटवीन एनी टू लाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर्स। दो लाइन का जो एंगल होता है वही एंगल उसके परपेंडिकुलर्स के बीच में होता है। समझे? यहाँ पर दो लाइंस मैं कौन से कंसिडर कर रहा हूँ, ये एक ग्रीन वाला एंड पिंक वाला, इनमें एंगल है थीटा प्लस अल्फा बाय 2। ग्रीन वाले का परपेंडिकुलर है नॉर्मल, ये दिस इज द नॉर्मल। ये अगर कर्व सरफेस है तो इस कर्व सरफेस का ये नॉर्मल है, और ये सॉरी ये टेंजेंट है और ये उसका नॉर्मल है। प्लीज अंडरस्टैंड, इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसके बीच में, और ये पिंक वाला है, इसके बीच में ये एंगल जो है इट विल बी थीटा प्लस अल्फा बाय 2, द सेम एंगल हियर। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? आई रिपीट, द एंगल बिटवीन एनी टू लाइंस, द एंगल बिटवीन एनी टू लाइंस, कौन से दो लाइंस मैं बोल सकता हूं कि भाई ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है, इन दोनों के बीच में जो भी कुछ एंगल है वही एंगल इसका परपेंडिकुलर है ये, सो दिस इज 1 डैश, और इसका परपेंडिकुलर ये दिस इज 2 डैश। द एंगल बिटवीन 1 एंड 2 इज इक्वल टू एंगल बिटवीन 1 डैश एंड 2 डैश, थीटा प्लस अल्फा बाय 2। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? ओके, अब ये जो है ये एंगल है थीटा प्लस अल्फा बाय 2 एंड दिस इज बी, दिस इज बी, समझे? एंड ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये ऐसे घूम रहा है। अगर इसका मैं सर्कल बना लूं इस तरह से तो ये उसका टेंजेंट है और ये उसका नॉर्मल है, नॉर्मल विल पास थ्रू द सेंटर। यस और नो? तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पर आई वुड लाइक टू राइट हियर कि भाई दिस एंगल cos of r, cos of this is equal to b. Are you understanding that? Cos of this angle, cos of theta plus alpha by 2 is equal to adjacent side which is b upon this radius of this curvature, इसका curvature का radius, that is r. Is this okay? Any doubts about that? Is that clear? So what I say here is b is equal to r times cos of थीटा प्लस अल्फा बाय 2। क्या ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में आ गया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल ट्रिग्नोमेट्री? इज दैट क्लियर? चलिए मैं इसको अभी मिटाने जा रहा हूँ। दिस इज डन। चलो, सो आई टेक दिस फर्दर नाउ। नाउ यहाँ पर एक्सेस प्रेशर जो होता है लिक्विड ड्रॉप का, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड, इट इज डेल्टा पी, या तो फिर हम इसको पी आई माइनस पी ओ बोल सकते हैं। इट इज इक्वल टू क्या होता है? इट इज इक्वल टू 2t अपॉन आर, है ना? 2t सरफेस टेंशन 2t अपॉन आर। अब एक्सेस प्रेशर क्या होगा जी? मतलब यहाँ का अगर हम बात करें, इफ आई टॉक हियर, if I consider here one point over here and one point outside, तो इसका एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगा? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द एक्सेस प्रेशर हियर? एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें, एक्सेस प्रेशर ऑन द कॉन्केव साइड ऑफ मेनिस्कस, मतलब कॉन्केव साइड, यहाँ का एक्सेस प्रेशर कितना होगा? अगर आपको याद होगा कि हमने एक्सेस प्रेशर के बेस्ड पर जो इसका कॉन्सेप्ट देखा है, if I consider here this concept of excess pressure, एंगल ऑफ कांटेक्ट के बेस पर अगर हमने एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट देखा है, एक्सेस प्रेशर के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कैपिलैरिटी इफेक्ट में, या दिस वाज
दिस वाज फर्स्ट मेथड ऑफ एक्सप्लेनिंग द कैपिलरी राइज, बराबर है क्या? मेथड 1 यूजिंग द प्रेशर डिफरेंस। तो इसमें जो एक्सेस प्रेशर होता है, देखिए इसी तरह का मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था। द एक्सेस प्रेशर हियर इज एक्चुअली एच रो जी। so what I see, let it be here because ये शायद स्नूज करेगा दोबारा। so let it be, keep it aside, just pay attention. so whatever is the pressure difference here, अगर आप प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे देख पा रहे हो, PA माइनस PB, ये जो प्रेशर द रेडियस ऑफ कर्वेचर R ऑफ द मेनिस्कस इज गिवन बाय R इज इक्वल टू R cos थीटा। सेम कॉन्सेप्ट वहां पर, ओनली द डिफरेंस इज दैट यहाँ पर ये जो कैपिलरी है वो स्ट्रेट है और वहां का कैपिलरी ट्रंकेटेड है, बट वी हैव टू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट देयर, प्लीज अंडरस्टैंड। दैट्स द रीजन व्हाई दैट प्रॉब्लम इज द स्टार प्रॉब्लम। हमने यहाँ पर ऑलरेडी जो देखा है कि दिस प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन R रो जी, सॉरी 2t cos थीटा अपॉन R इज इक्वल टू H रो जी। सेम थिंग वहां पर मुझे अप्लाई करना है, प्लीज चेक हियर। So H rho g is the excess pressure, H rho g, this is the excess pressure ना, यही excess pressure हम यहाँ पर H rho g करके लिख रहे हैं। Do you understand that? Is equal to this। तो मुझे यहाँ से यही concept अगर मुझे वहां पर अप्लाई करना है, the same thing if I'll apply over there, check, I'll just copy this over there, yes here, ये जो है यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। सो द प्रेशर डिफरेंस, व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस हियर? द प्रेशर डिफरेंस इज गिवन बाय एच रो जी, ये प्रेशर डिफरेंस है एक्सेस प्रेशर का, इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r। तो इट विल बी 2t cos, अब ये थीटा नहीं है, व्हाट इज दिस एंगल? ये एंगल जो है, दिस एंगल थीटा is actually here what is that angle? If I'll draw a parallel line over here, check here please, ये एंगल है this, so instead of थीटा, ये जो थीटा है यहाँ पर एंगल, वो यहाँ पर थीटा प्लस अल्फा बाय 2 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? कंफ्यूज हो रहा है? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? बताइए प्लीज, क्यों कंफ्यूज हो रहा है? देखिए ना ये डायग्राम, चेक हियर दिस डायग्राम, यहाँ पर जो मैंने 2t cos थीटा अपॉन r लिखा है, तो थीटा इज दिस एंगल, बराबर है, जो यहाँ पर थीटा प्लस अल्फा बाय 2 है बिकॉज ऑफ द ट्रंकेटेड नेचर। बेस रेडियस यहाँ पर r दिया है जो कि यहाँ पर b है, इसका रेडियस r दिया है ना इस कैपिलरी का, और यहाँ का रेडियस क्या है? b। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर मुझे 2t cos थीटा के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? थीटा प्लस अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय रेडियस r के जगह पर मुझे लिखना पड़ेगा b, क्योंकि यहाँ का जो रेडियस r है वो यहाँ का स्मॉल r है एक्चुअली। ये रेडियस r किसका है? ये यहाँ पर जो बलून, ये जो स्फीयर होगा ना तैयार, उसका रेडियस r दिया है, और ये रेडियस छोटा है। ये जो यहाँ पर तैयार हो जाएगा, अगर इसके मैं पूरा स्फीयर कंसिडर करूँ तो उसका रेडियस r है, लेकिन यहाँ का जो इस रेडियस इज b। इज दिस क्लियर? अल्फाबेटिकल्स में समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो स्मॉल r का रोल है वो यहाँ पर b प्ले करा रहा है, और यहाँ पर कैपिटल R का जो है वो रोल यहाँ पर स्मॉल r प्ले कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो अब मुझे इस इक्वेशन में ये इक्वेशन फिट करना है, तो एच रो जी सेम आएगा, 2t cos थीटा की जगह पर 2t cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाय 2 आएगा, और भाई डिनोमिनेटर में क्या आएगा? r के जगह पर क्या आएगा? इट हैज टू बी स्मॉल b। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? ओके, दिस इज स्मॉल b एंड वेल दैट्स इट। अब cos theta upon b is 1 upon r, yeah that's correct। is this clear to all? is this okay? बस अब मुझे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, so what will be h is equal to here, यहाँ से मुझे h का फॉर्मूला मिल जाएगा। so what is h is equal to, they are asking what is h, so h in this case is given by 2t cos of theta plus alpha by 2 upon b rho g, b rho g, ये होगा आंसर
एंड दैट इज डी इज द आंसर, क्योंकि हमने T बोल दिया है, उन्होंने सरफेस टेंशन को S बोल दिया है. So 2s cos of theta plus alpha by 2 upon B rho g. Well, this is the answer D. Is this clear to all? And this is a star. Actually ये star problem है. It's only for the sake of geometry. Trigonometry की वजह से ये star है. बाकी concept same ही है. जो concept मैंने आपको पहले explain किया था, उसी concept को मैंने यहाँ पर copy paste करवा के लाया है. Shape, yeah, that's. So they have complicated by making the truncated cone shaped capillary tube. Is that understood? ये आपको मैंने पहले वाले प्रीवियस लेक्चर से ही उठाया हुआ है. Is that okay? चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's go proceed further. The next is question number 2. HOTS question 2. I'll recommend कि HOTS के questions मतलब सारे स्टार वाले ही होते हैं. लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे वो HOTS के, लेकिन गुड क्वेश्चंस those are all. A uniform cylinder of radius L. A uniform cylinder of radius L, mass M, having cross sectional area A, is suspended with its length vertical from a fixed point by a massless spring, such that it is half submerged in liquid of density sigma at equilibrium position. The extension x0 of the spring when it is in equilibrium is. डायग्राम तैयार करना पड़ेगा. कैसा डायग्राम होगा बताइए. अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद द सिलेंडर. चलिए ठीक है. I'll start it with the cylinder. ये एक सिलेंडर है. आगे बताइए. Okay, it is tied to a spring. This is the spring. Okay. अब इसका आधा हाइट जो है, it is submerged in the liquid. Half. इसमें से आधा ना, only half of it. Half of it is submerged in liquid. इसे चलिए ये लिक्विड है. आगे बताइए. सिलेंडर ऑफ लेंथ L ना, इसका मतलब है दिस लेंथ इज L/2 एंड दिस लेंथ इज L/2. करेक्ट. सो यहां पर नाउ आई हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस सिलेंडर. FBD ऑफ सिलेंडर. फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? you'll have to show all the active and reactive forces. तो इसका weight is going to act vertically downwards. Yes or no? Isn't it? So first thing is its weight. Weight is acting vertically downwards. कितना होता है भाई वो? Will be mg. Then spring is going to pull it up. Spring उसको upward direction में pull करेगा. So I'll have to show the spring force here. यह है spring force. बराबर है ना? Isn't it? This is the spring force. कितना होता है spring force? उन्होंने बोला है कि x0 is its extension, the extension of the spring when it is in equilibrium. अब देखो नॉर्मली हम उसको अगर ये करेंगे, छोड़ देंगे स्प्रिंग को, तो जैसे ही सिलेंडर लटका दिया जाएगा तो वो एक्सटेंड होगा.
सिलेंडर को जब लटकाया जाएगा तो वो एक्सटेंड होगा, लेकिन जब उसको पानी के अंदर इमर्स किया जाएगा तो वो एक्सटेंशन कम हो जाएगा क्योंकि buoyancy फोर्स होगा. यस और नो? सो लेट अस से x0 इज इट्स एक्सटेंशन. अगर एक्सटेंशन x0 है, जितना एक्सटेंशन है द स्प्रिंग फोर्स, what is extension is equal to, it is force, what is k is equal to, it is force upon unit extension. बराबर है क्या? So x0 is equal to f upon k and f is equal to k into x0. जो फोर्स होता है वो कितना होता है? Are you understanding that? Spring force. I have already talked about these spring things earlier. So the spring force is equal to k into x0. So this is k into x0 is the spring force. I'll call this as spring force SF, which is given by k into x0. मैंने यहाँ पर एक्सटेंशन और स्टिफनेस दोनों का यहाँ पर फॉर्मूला दे दिया है. बराबर है क्या? सो दिस इज द स्प्रिंग फोर्स वी से. और उसके ऊपर एक फोर्स होगा विच इज कॉल्ड एज द फोर्स ऑफ बॉयंसी फोर्स. उसके ऊपर जो फोर्स होगा दैट इज द बॉयंसी फोर्स विच इज एक्टिंग हियर. ये अब थ्रस्ट मिलेगा उसको. सो दिस इज नथिंग बट द बॉयंसी फोर्स FB, बॉयंसी फोर्स. सो दो अपवर्ड फोर्सेस और एक डाउनवर्ड फोर्स है. यस और नो? सो व्हाट आई से हियर इज बॉयंसी फोर्स प्लस k इंटू x0, ये दोनों अपवर्ड फोर्सेस है और डाउनवर्ड एक्ट होने वाला है कि फोर्स है mg. समझ में आ गया? आई वॉन्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज दिस x0 इक्वल टू. मुझे यहाँ पर x0 चाहिए कितना है. नाउ व्हाट इज द बॉयंसी फोर्स, आप मुझे बता सकते हो बॉयंसी फोर्स क्या होता है? इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी उन्होंने सिग्मा दिया है. बॉयंसी फोर्स पता है ना, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. यस और नो? दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. कितना लिक्विड डिस्प्लेस हो चुका है? लिक्विड डिस्प्लेस हो गया है. इसका डायमीटर कितना दिया है? लेंथ दिया है, मास दिया है, मास हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A. ओके, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है. So what is the amount of liquid displaced? It is A into L by 2. This is the amount, volume of the liquid displaced. अगर इसको मैं इससे डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस इज द वेट, दिस इज द मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? और अगर मैं इसको G से मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस इज द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. समझ में आ गई बात? ये वॉल्यूम है, ये मास है और ये वेट है टोटल मिलाकर. यस और नो? डिड यू अंडरस्टैंड दैट? डिड यू अंडरस्टैंड दैट? तो मुझे यहाँ पर FB के जगह पर ये लिखना पड़ेगा सिग्मा AL बाय 2 इंटू G प्लस K टाइम्स x0 इज इक्वल टू M इंटू G. समझ में आ गई बात? अब मुझे ये उधर ट्रांसफर करना है. मुझे x0 चाहिए. सो व्हाट इज K इंटू x0 इज इक्वल टू, यहां से मेरे ख्याल से दिस इज mg minus sigma AL by 2 into G. Okay. Now looking at all the answers, mg upon k, mg is common here. तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे I'll multiply by m proceed. What I'll do here is I'll multiply by m and divide it by m. तो यहां से कुछ कॉमन लिया जा सकता है. I'll take mg कॉमन. ये कॉमन लिया जाएगा और मुझे k चाहिए ना, k नहीं चाहिए तो k I'll transfer. So it will be mg upon k is common. तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 1 माइनस क्या आएगा ये? सिग्मा AL upon 2m. This is x0. And what is that option? I think D is the answer. mg upon k 1 minus LA sigma upon 2m. So D is the answer there. Is this clear? And this is मैं इसको हाफ स्टार प्रॉब्लम बोलूंगा. दिस इज a half star problem. पूरी तरह से स्टार नहीं, हाफ स्टार बोल सकते हैं इसको. Is this clear to you all? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स गो फॉर, अच्छा इट्स टाइम अप. अच्छा, तो आई थिंक I'll stop here today.